Hi, good evening, everyone. Welcome to Vanti session. जैसा कि everyone know very well, last class we just finished up with the basics of permutation combination with practice of questions, right, everyone? Yes, ma'am. Yeah. So today onwards, we are just going to start with binomial theorem. So agree, right? Okay. So we are just. How many of you know the basics of binomial theorem? बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल किस किस को आता है बच्चों? अनुराग को आता है बस। यही एक्सपेक्ट करूं ना, यही एज्यूम करूं? अरे बोल पड़ो। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो ये बाइनोमियल का थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंस है कि भाई लास्ट ईयर 24 पेपर्स में 46 क्वेश्चन आए थे। इस बार का एनालिसिस आपको वेरी जल्दी मिल जाएगा, बहुत ही जल्द। तो ये टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बेसिक जो एक्सप्रेशन होता है, जनरल टर्म है, उनके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि भाई हमारे पास जैसा कि थोड़ा क्लासेस कम होती हैं, टाइम कम होता है, क्योंकि हमारी वीक में 2 ही क्लासेस पॉसिबल हो पाती हैं। सो वी विल डू द बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ओनली। क्लियर है? जो इसके बाद एक्सटेंडेड टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अपन क्लास 12 में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सबको बात क्लियर है ना? तो अगर आप सोचो भाई बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल क्यों बोला गया, क्योंकि मतलब मुझे समझ नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इज एम ऑडिबल? क्या नॉर्मल लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है या टोटली इंग्लिश चाहिए? कोई ऐसा बच्चा है? Okay, fine. So, dear friends, binomial theorem. If we are just going to start with the binomial theorem, what is binomial theorem? Why it is called binomial? Because this theorem or this expression contains two terms. That means a plus b raised to power n. Two terms are there. Term 1, term 2. That's why it is called binomial theorem. Binomial means two. Clear? Hai? Yes, ma'am. So binomial theorem, a plus b raised to power n. Just think about it as if you're having a plus b raised to power 0. So this will be equals to a plus b. If you're having a plus b, sorry, it will have, if the power is 0, then you will have only term 1, right? Then the answer is 1. If a plus b raised to power 1, then a plus b. If a plus b raised to power 2, then this will be equals to a square plus 2ab plus b square. Agree? Then Yes, a ma'am. plus b's whole cube, this will be equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Agree? Yes, ma'am. No, Yes, ma'am. what you have to think, what you have to observe, when the power is 0, then the number of terms will be 1. When power is 1, then number of terms will be 2. Then power is 2, then the number of terms will be 3. When power is 3, then the number of terms will be 4. Is it clear? Yes, ma'am. It means if a expression a plus b raised to power n is there, then how many terms in the expansion will be there? It will And contain n plus 1 terms. Is it clear to everyone? yes, ma'am. Okay. So that's okay. Till the time you were having power 2, power 3, or the power 4, you can expand it, right? Because we know the identities, we know the formulas. Clear? But the thing is that if I have suppose a plus b raised to power 7, then how I will expand? Because it will give me 8 terms. So for that term, for what that terminology, what I need then binomial expansion. Before moving ahead with the binomial expansion, see,
You already explained that these are the formulas. When the power is 0, then you have one term. When power is 1, then you have two terms, and 2, then you have three terms, and so on. Now just see the pattern. When the 1, we will start with the coefficient 1, then you have 1 and 1, then 1 2 1. This can be followed a Pascal triangle rule. Which triangle? Pascal's triangle rule. Anyone know this rule? Yes, ma'am. This 1 will come outside. Sum of these two numbers will give you middle number. Then again 1 will come outside. Then 1 plus 2 is equals to 3. 1 plus 2 is equals to 3, right? 1 outside, 1 outside. Then 1 plus 2, 3 is equals to 4. 3 plus 3 is 6. 1 plus 3 is 4. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Anyone, any doubt? भाई किसी को भी डाउट है कि भाई ऐसे कोफिशिएंट्स दिखते हैं और कैसे लिखा जाता है? No, ma'am, no doubt. ओके तो बच्चे देखिए, अगर मुझे पास्कल ट्राइंगल बनाना भी होगा तो आप कैसे सोचोगे? आपको ऑलरेडी पता चल गया कि भाई मैं कैसे करूंगी, 1 करूंगी, 1 1 करूंगी। अगली जब ये 1 टर्म के लिए जब n1 होगा, जब n2 होगा, अब जब n3 होगा तो मेरे कोफिशिएंट्स क्या दिखेंगे? 1 दिखेगा, 1 दिखेगा, और इन दोनों का सम मुझे क्या दे देगा बच्चों? 2। जब n4 होगा तो मेरे पास 1 आएगा, 1 आएगा, और ये 3 दे देगा, और ये 3 दे देगा। क्या बात समझ आई? Yes, ma'am. यहाँ पे गलत है। जब भाई पावर n 0 होगी तो 1 आएगा, जब पावर 1 होगी तो 2 एक कोफिशिएंट्स आएंगे, जब 2 होगी तो 3 आएंगे, जब 3 होगी तो 4 आएंगे। ऐसा दिखना चाहिए था। तो जब n 4 होगी तो मेरे कोफिशिएंट 1 एंड 1 एज इट इज, 1 प्लस 3 4 6 4। क्या सबको बात क्लियर है जी? Yes, किसी ma'am. को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. सबको क्लियर है? राइट एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. So let's get started. Now, what are the important observation? Now, everyone know here that if you have expansion a plus b raised to power n, then how many terms you will have? N plus 1 terms, right? Then see how the binomial expansion can be written. If you are having a plus b raised to power n, this can be written as nc0 a raised to power n minus 0 b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1, nc2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2, and so on, ncn a raised to power 0 b raised to power n. Right or not? Yes, ma'am. So just see the pattern as the coefficient of a. What you can say? Powers. Sum of the powers is n, n minus 0 and 0. It's n. जो पावर्स का सम है वो हमेशा पावर के इक्वल ही रहेगा। ठीक है जी। और देखिए भाई, एक एक जैसे इसकी पावर डिक्रीज हो रही है तो इसकी पावर इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, इसकी पावर डिक्रीज होती जाएगी तो इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी बच्चों। Yes, ma'am. और आपको कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ऑलरेडी सबको पता है कि भाई NC0 NCN के बराबर होता है, NC1 NCN माइनस 1 के बराबर होता है, NCR NCN माइनस R के बराबर होता है। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे कॉफिशिएंट लिखे थे, आगे से पहला और पिछले से पहला दोनों का कॉफिशिएंट बराबर है। याद है, देखिए आगे से दूसरा पीछे से दूसरा दोनों का कॉफिशिएंट बराबर है, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा दोनों का कॉफिशिएंट बराबर है बच्चों। Yes, ma'am. तो यही आपको बता रहा है कि भाई ये जो इक्वी डिस्टेंट वाला केस है वही आपका है कि भाई कोफिशिएंट बराबर होते हैं अगर वो सेम डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम द एंड। क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? बोल पड़ो। किसी को No, लगे ma'am. No, ma'am. सबको क्लियर है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो ये आपका एक जनरलाइज्ड है। अब देखो, अगर मेरे पास x प्लस वाई रेज टू पावर n होगी तो इसका एक बच्चों को होता है कि भाई जनरल टर्म वो सबको लिखनी आनी चाहिए। तो बच्चे जनरल टर्म का मतलब है टी आर प्लस 1, वो किसके बराबर होती है? एन सी आर एक्स की पावर, ठीक है जी, x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। क्या बात क्लियर है?
यस मैम। ये सबको आनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा यहाँ बैठे अगर उसको जनरल टर्म नहीं आती तो उसको बाइनोमियल नहीं आता, तो जस्ट नोट इट डाउन और उसको सोचिए। अगर किसी को लग रहा है भाई मेरे को मैम लिखने में दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए। हाँ जी, यस डियर स्टूडेंट्स बताइए। किसी को भी डाउट है? हाँ जी, गर्ल्स नो डाउट मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, तो अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना है, क्या आप लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हो? अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना हो, क्या आप कर सकते हो या मैं करूं? मैम ट्राई कर सकते हैं। ओके, टेक योर टाइम, नो इश्यूज। बच्चे जो अभी मैंने आपको एक्सपेंशन सिखाई वही लगाना है। सेम यू हैव टू इम्प्लीमेंट। व्हाट इट शुड बी 6c0 x रेज टू पावर 0 1 अपॉन x रेज टू पावर 6 माइनस 0 और 1 अपॉन x रेज टू पावर 0 प्लस दिया 6c1 राइट नेहा x raised to power 5 1 upon x raised to power 1 clear. Then 6c2 x raised to power 4 1 upon x raised to power 2 Vatsal plus 6c3 x raised to power 3 1 upon x raised to power 3 plus 6c4 x raised to power 2 1 upon x raised to power 4 yes plus 6c5 x raised to power 1 upon x raised to power 5 and the last one 6c6 x raised to power 0 1 upon x raised to power 6. Is it clear to everyone? यस मैम। तो किसी को भी इसमें डाउट है कि एक्सपैंड कैसे करना है? एनीवन? तनिषा, दिया, नो मैम। अनुराग, आर्यन, अवनी? So clear everyone? Pujitha, Lohit, Ritu? Yes, ma'am. Okay, great. So let it. See, ready to expand this? Should I give you 2 minutes? यस मैम। मैम बी को हम -3 ले सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल।
Yes, done. Ma'am, doing. Okay, so done, right? Yes, ma'am. किसी का रहता है, किसी को पूछना है. So what should be the expansion? It should look like this. 6c0 2x raised to power 6 minus 3 raised to power 0. Then 6c1 2x raised to power 5 minus 3 raised to power 1, and so on up to 6c6 2x raised to power 0 minus 3 raised to power 6. Is it so clear? Hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next question is the larger. Which is going to be the larger? This number or this number? Should I give you time to think about this question? खुद से पहले किसी को ट्राई करना है या मैं अटेम्प्ट कर दूं? आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है या बराबर है. ठीक है जी. Ma'am, both are equal. ओके, तो भाई सबका इक्वल है. तनीषा इक्वल तो नहीं है. ध्यान से सोचिए, ध्यान से थिंक अबाउट इट. सी, आपके पास एक नंबर है 99 raised to power 50, right? So I can rewrite it as 100 minus 1 raised to power 50. Another number is 101 raised to power 50. So I can rewrite it as 100 plus 1 raised to power 50. Agree? So it will look like 50C0 100 raised to power 50 1 raised to power 0 plus 50C1 100 raised to power 49 1 raised to power 1, and so on. Right or not? Yes, Another ma'am. way you are having 50C0 100 raised to power 50 minus 1 raised to power 0. Then 50C1 100 raised to power 49 minus 1 raised to power 1, and so on. Clear everyone? भाई यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है. सोच के देखो, ये जो नंबर है इसमें बहुत सारी मतलब 50% टर्म्स जो है वो नेगेटिव में आएंगी, है ना? Yes, ma'am.
और इसमें सारी पॉजिटिव आएंगी, और अगर इस टर्म में कहीं मैं 100 की पावर 50 ऐड भी कर दूंगी तो भी ये मेरा जो लॉस है उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगी। सोच के देखो, क्योंकि सबसे पहले तो ये बड़ी टर्म ही आपको दिख रही है कि भाई ये डिलीट हो रही है, कट हो रही है, और 100 की पावर 50 अप्रॉक्स उसी के बराबर है बच्चों। क्या कहते हो? शिवराम, समीर, clear? So it means this number is always greater. So you can say which number is larger? It means 101 raised to power 50 is larger. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Anyone, any doubt? Okay. So now we are having the next thing, that for that what you required the general term. What was the general term? If I have x plus y raised to power n, so what should be the general term? NCR. If I want to write generalized term, TR plus 1, so x raised to power n minus r, y raised to power r, bacha party. Yes, ma'am. So let's get started with the, if the coefficient is asking about the coefficient of x raised to power r, अगर x raised to power 6 का coefficient निकालना है, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखो, क्या आएगा? 10CR 1 raised to power 10 minus r x raised to power r. It means 10CR x raised to power r बच्चों, Yes, ma'am. right? So it means x raised to power 6 का coefficient चाहिए, तो r को क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। r को क्या होना चाहिए? 6। Therefore coefficient पूछा था x की पावर 6 का, तो 10C6 आएगा। किसी को भी डाउट है? Anyone, any confusion? Then please let me know. हमें एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, आपने क्या करा, आपने जनरल टर्म लिखा, ठीक, ओके। जनरल टर्म लिखा। उसके बाद क्वेश्चन ने जैसा मुझे बोला कि x की पावर 6 चाहिए, तो आपने x की जितनी भी पावर्स होंगी उनको कंबाइन करके आपके पास r बनी। तो आपने बोला कि जो r है उसको किसके बराबर होना चाहिए? 6 के बराबर होना चाहिए। यस मैम। तो आपका जो कोफिशिएंट है वो x की पावर 6 का जो भी आगे टर्म है वो कितनी है? कांस्टेंट टर्म 10C6। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर इन द सेम वे ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें देखिए, अब ध्यान से सोचना, क्वेश्चन ने मुझे पूछा सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, इट मींस T6 की बात हो रही है, तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? TR प्लस 1। क्या लिखूंगी? 10CR 2x की पावर 2 उसकी पावर 10 माइनस r और माइनस 1/3x² की पावर r। एग्री? Now the question said T6. It means 10C5 2x² की पावर 5 माइनस 1/3x² की पावर 5 बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. So now we can solve. What should be the term? It should be 10C5 x raised to power 10, 10 cancel. So 2 raised to power 5 divided by minus 3 raised to power 5 बच्चों। Clear? Any confusion? Any doubt? No, ma'am. मैम रिपीट करना। हाँ जी ऋतिक। ऋतिक, हमने क्या करा बच्चे, हमसे 6 टर्म पूछी थी, हमने जनरलाइज टर्म लिख लिया। 6 निकालने के लिए आर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यस मैम। बस आपने एक सिंपल क्या किया, 10C5 जो पहले वाला नंबर था उसकी पावर 10 माइनस 5 5 आ गई, और दूसरे वाले की पावर यह थी, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 10। x की पावर भी 10 हो रहा है, x की पावर 10, एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, तो दोनों डिडक्ट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास 10C5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3 रेज टू पावर 5। क्लियर है? यस मैम। चलिए
क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए रेडी है सब लोग? हाँ जी, रेडी? डन? मैम सॉल्विंग। यस बच्चों, डन? मैम सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है, तो भाई किसी को हेल्प चाहिए? व्हाट द एक्चुअली क्वेश्चन, फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, इट मींस T4 जो है वो 2.5 है, राइट? एग्री? सो MC3 Px raised to power m minus 3 1 upon x raised to power 3, right? That should be 2.4. Yes or no? Is it so? Yes, ma'am. Okay. So MC3 P raised to power m minus 3 and x raised to power m minus 6, that should be equals to 2.4, right? Yes, ma'am. So here, let's say here it is P raised to power 0, x raised to power 0. It means m minus 3 is equals to 0. So m should be 3. Then what about x? Yes. In another case, you are having
m minus 6 is 0. It means m is equals to 6, right? Yes, ma'am. Why 3 is ignored? Because they said 3C3 doesn't look nice. 3C3 means 1. Yes, Yes, ma'am. ma'am. If a term is having the some power and its fourth term question is asking, and they said x will be some real number, p is there, so according to this it's independent of x. It means, let's say m is equals to 6. If m is 6, then just solve the power. Clear? Okay, भाई समझ आ गया? दोनों के लिए सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा. ये क्वेश्चन 2023 में आया था और कितने लोगों को लग रहा है मैं कर सकता हूँ? तनिषा सेड आई कैन डू. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. हर्ष, गौरव, दुर्गेश, लोहित, पूजिता, ऋतिक, राइट बच्चों? सो टेक योर टाइम, 5 मिनट्स ले लो और इसको सॉल्व करो. मेरे को बताओ आंसर कितना आया. यस, डन. अरे बोलो. हुआ बच्चों? दिया, तनिषा, दुर्गेश, गौरव, लोहित, पूजिता, ऋतु, ऋतिक, हर्ष, आर्यन, अनुराग, अवनी, समीर, सुल्फिकर, शिवरम, वत्सल. बोलिए बच्चा पार्टी. डन. आंसर आया? ए आया. ठीक है, हर्ष बिल्कुल सही आंसर है. हाँ जी, और किसी का ए आया?
तो देखिए बच्चे करना कैसे होगा, x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जनरल टर्म लिखनी होती है। सो टी आर प्लस 1 लिखिए, दैट मीन्स 5CR 2x क्यूब की पावर 5 माइनस r माइनस 1/3 x स्क्वायर की पावर r। एग्री? अब जैसा कि x की पावर 5 बोला तो x की पावर इकट्ठी कर लीजिए, तो 15 माइनस 3r माइनस 2r। सो इट शुड बी 15 माइनस 5r जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। तो 5r जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 10। तो r की वैल्यू कितनी होना चाहिए बच्चा, 2। तो बस r का कोफिशिएंट निकालना है, बस x को छोड़ दीजिए तो आपके पास बचा 5c2 2 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 2। ये आप जब सॉल्व करेंगे 5c2 कर लीजिए, 8 इंटू माइनस 1/9 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? माइनस तो खत्म हो जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। क्या यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। हे एवरीवन, स्पीक अप। क्लियर? दिया क्लियर? यस मैम। ओके तो क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक योर टाइम। ये भी 2023 का है। तो एक आंसर तनीषा ने मुझे दिया है, क्या सब उस आंसर से एग्री है? ठीक है, हर्ष एग्री है, बाकी रेस्ट? तो बच्चा इस क्वेश्चन को करा कैसे, तनीषा कैसे सोचा आपने? ऐसा ही सोचा होगा ना कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो आपने ले लिया होगा कि अगर ये जो भी 3 टर्म्स थी, मान लीजिए अगर r प्लस 1th टर्म है तो r प्लस 2th होगी और ये r प्लस 3th होगी, राइट?
ऐसा ही सोचा होगा ना, यस मैम। है ना। यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ, अगर अपन बात करेंगे तो कॉफिशिएंट में आपके पास आ जाएगा NCR+2 डिवाइडेड बाय NCR+1 जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। फिर NCR+1 डिवाइडेड बाय NCR जो है वो 5 के बराबर होगा। बस ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करने थे जो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा था बच्चों। यस मैम। ठीक है, देखिए ये ना हर साल एनटीए भी अपने पेपर रिलीज करता होता है, प्रैक्टिस पेपर्स। तो अब आपको देखिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2x raised to power 74, then whose coefficients are equal, right? Two consecutive terms coefficients are equal, then you have to tell which terms are that. So ready to solve? Aryan, Tanisha, Harshal, Pujitha, ready? यस मैम। तो तनीषा का आंसर आया 30th and 31। बाकी सब अपनी स्टैंप लगा दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस आंसर? पुजीता आपकी तरफ से आंसर नहीं आ रहे हैं। दिया भी शांत हो गई है। ऋतिक, हर्षल, चलो let me know how many of you are facing difficulty in these questions. We have generally done only one formula, so how many of you are facing difficulty? हाँ जी दिया, बताइए अपनी difficulty बताइए। Ma'am, actually, I'm not getting how to do this. Like, This question only है, last previous one, previous to previous one also. ma'am, the previous one also. The previous one was clear, but the previous one was not. See, they said na consecutive terms. Consecutive terms means like 1, 2, 3. They are consecutive terms. Like second, third, fourth. They are consecutive terms, right? ठीक है ना? तो दिया जब Yeah. आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करते हो तो देखो मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिया कि पहली टर्म मान लो r+1 है, अगली r+2 है, उससे अगली r+3 है। इन्होंने मुझे बोला कॉफिशिएंट, क्योंकि देखो कॉफिशिएंट की बात होगी, बाकी तो x ही रहेगा। तो भाई जब मैंने देखा कि r+3 मतलब r+3 का कॉफिशिएंट कितना आएगा, NCR+2 आएगा। उससे पहले वाली टर्म का कॉफिशिएंट NCR+1 आएगा, तो आपके पास उनकी रेशियो 4 आ जाएगी ना, 20/5। Yes, ma'am. In the same way, NC
R+1 डिवाइडेड बाय NCR, इनकी रेशियो 5 के बराबर आएगी। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे ना, आपके पास आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R+2 फैक्टोरियल n माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल, याद आया? वैसे ही डिनोमिनेटर में लगाएंगे और ये कैंसिल होके कट जाएंगे, सॉल्विंग हो जाएगी इनकी। ठीक है, दिया क्लियर है? Yes, ma'am. Now it's clear. अब देखिए अगला, कहते हैं टू consecutive terms in the extension, it means consecutive terms whose coefficients equal, then you can say coefficient of TR plus 1 is equals to coefficient of TR, ये सुनो, ये दोनों consecutive terms है, तो आप ये बोलोगे ना 74 CR 3 raised to power 74 minus R 2x raised to power R, जो कि किसके बराबर होगा 74, क्योंकि इनके कॉफिशिएंट्स इक्वल है, तो मेरे को अब एक बार लिखना होगा TR माइनस 1 3 रेज टू पावर 74 माइनस R प्लस 1 देन 2 रेज टू पावर 2x रेज टू पावर R माइनस 1। सिर्फ कॉफिशिएंट चाहिए थे, दिया तो x छोड़ दूं, इसका मतलब क्वेश्चन बोल रहा है 74 CR 3 रेज टू पावर 74 माइनस R 2 रेज टू पावर R, भाई किसके बराबर है 74 CR माइनस 1 3 की पावर 75 माइनस R 2 की पावर R माइनस 1, एग्री? तो दिया अगर आप सोचोगे तो ये इससे कट जाएगा और 3 देगा, और ये इससे कट जाएगा तो 2 देगा, तो मुझे ये पता चला कि भाई 74 CR डिवाइडेड बाय 74 CR माइनस 1 जो है वो 3/2 के बराबर है। और आपको याद होगा जब हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, तो हमने एक फॉर्मूला याद करा था कि NCR, याद करो, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 किसके बराबर होता है, इसका हमने फॉर्मूला करा था ना। ये सुनो, क्लियर? हाँ जी बताइए। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसको आप फॉर्मूला से कर लीजिए या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का भी लगाएंगे ना तो भी चलेगा। तो यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? स्पीक अप गाइस। नो। तो No, ma'am. ये हमारा था, हमने आज की क्लास में कोफिशिएंट्स के ऊपर क्वेश्चन करे। जब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो हम मिडल टर्म और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब बेसिक्स पढ़ के आएंगे अपना बायनोमियल का फ्रॉम एनसीईआरटी। कितने लोग पढ़ के आएंगे, रेज योर हैंड्स। अगर यहाँ तक अभी किसी को भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, दे कैन आस्क। हाँ बोलिए दिया। Ma'am, I raised my hand because I will study. ओके ठीक। सो मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करी तो मुझे एक बार बता दीजिए, जिसको जो भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है कि भाई मेरे को यहाँ पे हेल्प चाहिए, दे कैन टेल।